الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، پیارے بچوں، ہم نے جس وقت اس دنیا میں جنم لیا اس وقت سے اللہ کے فرشتے ہمارے نگران بنائے گئے، ہمارے محافظ بنائے گئے. کسی کو ہمارے روزی روٹی کے انتظام میں لگایا گیا، کسی کو ہم کو حادثات سے بچانے کے انتظام میں لگایا گیا، کسی کو ہماری تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کے کام میں لگایا گیا. حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف جلد اول کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے تو زور سے چیختا ہے. صارخاً کا لفظ آیا ہے، صارخاً کہا جاتا ہے زور سے چیخنے کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ دنیا میں آتے ہی کیوں چیخ رہا ہے؟ کیوں رویا اس نے؟ اس کو تکلیف کیا ہوئی؟ پریشانی کیا ہوئی؟ کیوں رویا اس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے زمین میں آتے ہی اس کو شیطان آتا ہے، اس کے پاس اس کو چمٹی کاٹتا ہے اور بچہ وہاں آ کر کے زور سے چیختا ہے. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس مقابلہ شروع کرو. شیطان نے اپنا زہر ڈالا ہے اس کے اندر کہ آج سے تو میرے قبضے میں، آج سے تو میرے تابع میں، آج سے وہ کرے گا تو جو میں تجھے کہوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، توڑ کرو اس کا، اور اس بچے کے کام میں کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. توڑ کرو. شیطان نے کہا کہ میرے قبضے میں نہیں، تو اللہ اس کے رسول کے تابع ہے. یولد علی الفطرہ، تجھے اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، صحیح سالم پیدا کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کام میں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. بچہ سمجھتا نہیں، بچہ سنتا نہیں، کہا کہ کہو اس کے کام میں، گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود. تجھے چلنا ہے اس دنیا میں، رہنا ہے اس دنیا میں، زندگی گزارنا ہے اس دنیا میں، تو اسی پر قائم رہنا، اسی پر دائم رہنا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا و محبوب و میرے رہنما ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں. اسی دن سے ہمارا شیطان کے ساتھ ٹکراؤ چالو ہوا. جب ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں آئے، ہمارا ٹکراؤ چالو ہوا شیطان کے ساتھ. وہ ہمیشہ ہمارے پیچھے رہتا ہے. قرآن میں اس نے اللہ کے سامنے قسم کھایا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ، تو نے مجھے رسوا کیا، تو نے مجھے ذلیل کیا، مجھے ملعون بنایا، مجھے جنت سے نکال دیا، تو نے ہمیشہ کے لیے مجھ پر لعنت بھیجا، تو نے مجھے مہلت دے دے، کیا قیامت تک تیرے بندوں کے ساتھ کھلواڑ کروں. اللہ نے فرمایا انک لمن المنظرین، میں تجھے مہلت دیتا ہوں. شیطان نے کہا اس کے سامنے سے آؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اس کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اس کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اس کے بائیں طرف سے آؤں گا. چاروں طرف سے آ کر میں تیرے بندوں کو
गुमराह करूँगा। अल्लाह ने कहा अरे मरदूद, जब तेरी गुमराही में आकर मेरे बंदे रास्ते से भटक जाए या बहक जाए, गलत काम कर ले, जब वो नीचे से हाथ उठाएगा ऊपर से माफ कर दूंगा। कसम खाया उसने, यही में उसका काम है। और अल्लाह ताला ने हमको भेजने के बाद हमारे सामने दो रास्ते बनाए हैं, दो रास्ते दिखाए, दो रास्ते जाहिर किए हमारे सामने। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, जिस बच्चे को पैदा किया है अल्लाह ने, उसको उसी वक्त से सिखा रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। ये बच्चा, शेख सादी ने फरमाया मुर्ग अज़बैज़ा बेरूमी आयत रोज़ी तलबत आदमी ज़्यादा नदारत खबर व अक़ल तमीज़, मुर्गी का चूजा अंडे से बाहर आता है, ज़मीन में चोंच मारता है, अपने रोज़ी तलाश करता है। और इंसान के बच्चे जब माँ के पेट से आता है, उसको ना होश रहता है, ना खबर रहता है, तमीज़ रहती है। बस उसको इतना आता है कि उसको रोना आ रहा है और कुछ नहीं आता है, मगर उसको सिखा रहा है। अल्लाह फरमाता मैं सिखा रहा हूँ उसको, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उसके अंदर दोनों चीज़ें मैंने डाल दिया पैदा होते ही, अच्छाई का मादा बुराई का मादा उसके अंदर मैंने हलूल कर दिया है। उसको सिखाया माँ के पिस्ता से दूध कैसे चूसा जाता है, सिखाया जा रहा है। वहदैनाहुन नजदैन, और जब थोड़े बड़े हुए तो अल्लाह ने हिदायत के रास्ते हमारे सामने खोले, दो रास्ते खोले, ये जन्नत का, ये जहन्नम का, ये अच्छा ये बुरा, ये गलत ये खराब, ये अच्छा, ये रास्ते अल्लाह ने हमारे सामने खोले हैं। वहदैनाहुन नजदैन, बंदा तेरे सामने दो रास्ता खोला है। फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर, जो चाहे ईमान के रास्ते में चले, जो चाहे कुफ्र के रास्ते में चले। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, कुफ्र के रास्ते में चलकर जो जुल्म करेगा मैं उसके लिए जहन्नम बनाया। हमारे सामने वो सारे रास्ते खोल दिए अल्लाह ताला ने, दोनों रास्ते खोले हमारे, हमको दिमाग दिया है, अक्ल सलीम दिया है, समझने का, शऊर का, एहसास करने का हर इल्म हमको अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर अता किया है। पैदा होते ही वो चीज़ें हमको सिखाई गई है, बता दी गई है। अब हम शैतान की बहकाओं में आकर गलत रास्ते में जाते हैं। फेल वक्त तो खुद करे, लानत करे इब्लिस पर, खुद गलत काम करके इब्लिस को लानत करके क्या फ़ायदा है दोस्तों। याद करो मुझे, तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह कहता है पहले तुम याद करो, बाद में मैं तुम्हें याद करूँगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, पहले तुम मुझे याद करो बंदे, फिर मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मुझे तन्हाई में याद करोगे, मैं भी तन्हाई में तुमको याद करूँगा। तुम मजमा में याद करोगे, हदीस में आया तो अल्लाह फरमाता है कि मैं भी फरिश्तों की मजमा में तुमको याद करूँगा। उदूनी अस्तजिब लकुम, पुकारो मुझे, मैं दावत तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, दावत जवाब देता हूँ। यह हमारा रब है जिसने पैदा होते ही हमारी निगहबानी कर रहा है, हमारी परवरिश कर रहा है। हम पैदा बच्चा थे, बच्चे से हम जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वशैबा, फिर तुम कमज़ोर हो जाओगे, फिर तुम कब्र की गोद में चले जाओगे। मगर अल्लाह ने हमको बेसहारा नहीं छोड़ा, हमको लावारिस नहीं छोड़ा। उसने हमारे सामने दीनी तालीमात अंबिया के ज़रिए से, बुजुर्गों के ज़रिए से, आका के ज़रिए से, अपने शेख और मुर्शिद और मुरब्बियों के ज़रिए से हमको वो सारे रास्ते दिखाए, हमारे सामने खोल कर रखे हमारे सामने। कोई कबूल करने तैयार नहीं है, शैतान की बहकाओं में फंसे हुए हैं, शैतान के चक्कर में जकड़े हुए हैं। कोई अपने उस्ताद और पीर और मुर्शिद और हजरत, अल्लाह, अल्लाह के रसूल, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सब मनमानी जिंदगी गुजार रहा है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, बंदा अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह तू मेरा मदद कर, पहले मेरी मदद पहले कर, निकल तू निकल, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। क्या मदद करेगा? मेरी बड़ाई कर, मेरी तस्बीह कर, मेरी पाकी कर, मुझे बुला, मेरे पास आ, मेरे नज़दीक आ, तो मैं भी तेरी मदद करूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, शर्त यह है तुम करोगे तो मैं भी करूंगा, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद करूंगा। दोस्तों, ये हमारे लिए मौका है, हमारे लिए ये जो अय्याम हम गुजर रहे हैं, देख रहे हैं हम, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दुनिया ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है। हर सब कुछ हमको अल्लाह ने दिया है, सब कुछ हमको अल्लाह ने दिया है। बहलूल नाम का एक बुजुर्ग गुजरे जिसको लोग दीवाने समझते थे, बगदाद के रहने वाले थे। बहलूल एक मर्तबा रास्ते के बीच में बैठकर अपने धुन में मगन था, अल्लाह वाला था, जिक्र करता था, अल्लाह अल्लाह करता था। रास्ते में बैठकर लकीर खींच रहा था, तन्हा बैठकर। हारून रशीद उस वक्त का बादशाह था, हाथी पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में हाथी रुक गया। लोगों ने हारून रशीद ने पूछा हाथी क्यों रुक गया? बोल रहा आगे रोड ब्लॉक है, बहलूल बैठा हुआ है।
सवारी से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, बादशाह है उस ज़माने का, मगर अल्लाह वाला बादशाह था, दीनदार बादशाह था। सवारी से नीचे उतरा, उतर कर बहलूल के पास गया। क्या बात है बहलूल, ज़मीन में लकीर खींच रहे हो? बहलूल ने कहा, अल्लाह और बंदों का सुलह करा रहा हूँ। बंदे बगावत पे उतरे हैं, अल्लाह माफ़ी पे आया है, बंदा माफ़ी चाहता नहीं, अल्लाह माफ़ करने को तैयार है। बोला मैं सुलह करा रहा हूँ, बंदों और अल्लाह के दरमियान सुलह कराने बैठा हूँ। हर रशीद ने पूछा कि सुलह हो गई? तो बहलूल ने कहा ऊपर वाला तो मान रहा है, ये नीचे वाले नहीं मान रहे हैं, ये ज़मीन वाले नहीं मान रहे हैं, ऊपर वाला तो मान रहा है, वो सुलह करने तैयार है, वो माफ़ करने भी तैयार है, वो बुलाने भी तैयार है, देने भी तैयार है, ये नीचे वाले नहीं मान रहे, शैतान के चक्कर में फंसे हुए। कुछ दिनों के बाद फिर एक मरतबा ऐसा ही कब्रिस्तान के पास बहलूल मिला, बैठा हुआ था। हारून रशीद वहीं से गुजर रहा था, देखा सेम वही बैठ कर लकीरें खींच रहा है, लकीरें खींच रहा है, फिर मिटा रहा है, खींच रहा है, फिर मिटा रहा है। हारून रशीद नज़दीक जाकर पूछता है क्या हुआ बहलूल? बोला बंदा और मखलूक का सुलह करा रहा हूँ, सुलह करा रहा हूँ, मैं सुलह करा रहा हूँ। सुलह हो गई क्या? नहीं। बोला ऊपर वाला नहीं मान रहा है, नीचे वाले तो मान रहे हैं, जो कब्रिस्तान में पड़े हैं वो मान रहे हैं, मगर ऊपर वाला नहीं मान रहा है। पहले क्या बोला था? ऊपर वाला मान रहा था, नीचे वाला नहीं मान रहा है। अभी नीचे वाला मान रहा है, ऊपर वाला बोलते नहीं मान रहा है बोलते। देखो भाई दोस्तों, हमको अभी से मान लेना चाहिए। अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह तलब कर रहा है, अल्लाह हमको मोहब्बत करता है, प्यार करता है, बहुत शफकत करता है। कितने प्यार से अल्लाह ने, कितने आसना तक़वीम, कितने अच्छी खूबसूरती से अल्लाह ने हमको पैदा किया है, कितनी प्यार मोहब्बत उसको अपने बंदे से है, और वो माफ़ करना चाहता है। बंदा माफ़ लेने को तैयार नहीं है, हर वक्त वो देने को तैयार है, बंदा लेने तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, हमको उसी की तरफ पलटना है, उसी की तरफ मुतवज्जो होना है। अल्लाह को हम बुलाते हैं, अल्लाह की याद करते हैं, बस हमारी ज़ुबान में सिर्फ अल्लाह अल्लाह है। शेख सादी ने कहा कि बर ज़ुबान तस्बीह दर दिल गाओ खर, ई चुनी तस्बीह का इदारत असर। ज़ुबान से तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और दिल के अंदर तो जानवर और दुनिया भरा हुआ है। गधा और गाय है दिल में, और ज़ुबान पे अल्लाह अल्लाह है। बोला ये अल्लाह अल्लाह कब असर करेगा? ये अल्लाह अल्लाह कब असर करेगा? दिल से अल्लाह अल्लाह आना चाहिए, दिल से वो आवाज़ आनी चाहिए, दिल से वो पुकार आनी चाहिए जो अल्लाह को मतलूब है। हमारे जो सालिकीन होते हैं, जो मुरब्बीन होते हैं, मुर्शिदीन होते हैं, वो दिलों पर मेहनत करते हैं। दिलों पर मेहनत करके अगर दिल हमारा ज़रख़ेज़ है तो फिर हम अल्लाह के करीब पहुँच सकते हैं, अल्लाह की रज़ा के करीब पहुँच सकते हैं, अल्लाह की माफ़ी के करीब पहुँच सकते हैं। वो हर वक्त तो हमारी तरफ मुतवज्जे है, बस फ़र्क इतना है कि हम मुतवज्जे नहीं है उसकी तरफ। वो हमको देख रहा है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। वो हमारा सुन रहा है, हम उसकी नहीं सुन रहे हैं। फ़र्क इतना है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। ऐनमा कुन्तुम वहुव माअकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। बंदा जहाँ कहीं भी तो रहता है, वो तेरे साथ है, साथ है, हमारे साथ है। वो दोस्तों हमारे साथ है। वो बॉडीगार्ड लगा दिया, हमारे गर्दन पे बिठा दिया हमको, मुहाफिज़ बिठाए हैं, लिख रहे हैं, दफ्तर लिख रहे हैं, क्या क्या किया, क्या क्या कहा, क्या क्या पढ़ा, क्या अच्छा क्या बुरा। दोस्तों सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग समझते बहुत इजी है, मोबाइल में रिकॉर्ड होता है, टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होता था एक ज़माने में, हाँ रील बनती थी, ये एकदम इजी है समझना। दफ्तर के दफ्तर को एक थोड़े चिप्स के अंदर पूरा आधी दुनिया की नॉलेज मालूमात आ जाती है। फरिश्ते बैठ कर लिख रहे हैं दोस्तों, उनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। किरामन बोले तो बुजुर्ग, कातिबीन बोले तो लिखने वाले बुजुर्ग फरिश्ते हैं। वो सीधे तरफ अच्छाई लिखते हैं और दामी तरफ बाईं तरफ बुराई लिखते हैं। दोस्तों सब महफूज हो रहा है। अच्छा करेंगे अच्छाई मिलेगी, बुरा करेंगे बुराई मिलेगी। दोस्तों अल्लाह ताला ने हमको एक मौका दिया है, ये ज़िंदगी दी है, ये जवानी दी है, ये तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, माल दिया, दौलत दिया, बीवी बच्चे सब कुछ दिया है इम्तिहान के लिए। दोस्तों इम्तिहान लेने के लिए हम लोग को मय्युकुम हसन मामला। शुरू में ज़िंदगी थी, बाद में मौत आई, दरमियान में फरमाया अल्लाह मैं इम्तिहान लेता हूँ, मैं इम्तिहान लेता हूँ, पर्चा लिखवाता हूँ, लिखो पास का फेल अल्लाह मालूम करेगा।
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन है जो अच्छा अमल करने वाले हैं, बेहतरीन अमल करने वाले हैं। हमको मौका दिया अल्लाह ने कि हम किसी सालिक के पास आए हैं, किसी मुर्शिद के पास आए हैं, अपने दिल को पाक करने के लिए, गंदगी गलागत से पाक होने के लिए आए हैं। अल्लाह हम सबकी गंदगी गलागत दिल की कुदरत को पाक फरमाएं और हमको अपने मुहिब्बीन में शुमार फरमाएं और हमारे मुर्शिदों की, हमारे सालिकीन के अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह उनको बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनको उम्र दराज करे, तादेर हमारे ऊपर का साया बरकरार रखे। जब हम अल्लाह के करीब आएंगे तो अल्लाह के लिए मर मिटना, दीन के लिए मर मिटना और इस कुरान और हदीस के लिए, रसूल के लिए, दीन के लिए, अल्लाह के लिए, मुर्शिदों के लिए मर मिटना हमारे लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। दोस्तों, हमारा दिल उसकी याद से गाफिल न हो, उसकी फिक्र से गाफिल न हो। वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अरे एक दरख्त के पत्ते को तोड़ कर लाओ, दरख्त के पत्ते को तोड़ो, हर दरख्त के पत्ते के अंदर अलग अलग डिजाइन है। ये क्या करिश्मा है। हर वरक़े दफ्तरीस्त मारिफ़त किरदिगार, हर वरक़े दफ्तरीस्त मारिफ़त किरदिगार। उस अल्लाह की कारीगरी, इंजीनियरिंग उस एक पत्ते के अंदर नजर आएगी। एक दरख्त के पत्ते तोड़ो, हर दरख्त का पत्ता अलग अलग है, उसके अंदर क्या नक्शे हैं, क्या नगीने हैं, क्या डिजाइन है। सोचो भाई, अल्लाह फरमाता गौर कर, जो मैंने पैदा किया उस पर गौर कर, मुझ पर गौर मत कर, मेरी बनाई हुई चीजों पर गौर कर। वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन के खिलकत के बारे में गौर व फिक्र करो। छोटी छोटी चीज हमारे आंखों के सामने गुजर देते, कितनी मतलब गाड़ियां चलाकर कितनी चींटियों को रोन दिए, अल्लाह ने बनाया मखलूक को हमने रोन दिया, कभी अफसोस भी नहीं किया। कितने कीड़े मकोड़े हमारे गाड़ी के नीचे आकर मर गए, हमने कभी सोचा भी नहीं है। कितनों को मार दिया, जान किसने डाला था, हमको मारने का हक किसने दिया है। ये अल्लाह के मखलूक थे, ये अल्लाह के मखलूक है, अल्लाह ने बनाया है। हमने बेजरर के उनको मार दिया है, गाड़ी से कुचल दिया है उनको। जब अल्लाह से हमारा रिश्ता ताल्लुक होगा तो हमारे दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह ही रहेगा, उसी की याद रहेगी, उसी की याद रहेगी। एक मरतबा मजनून लैला को ढूंढने के लिए जंगल की रास्ते से जा रहा था, तो जंगल के अंदर छुपकर एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे ज़माने के, नमाज पढ़ रहे थे और हजरत सजदे में गए हुए थे। मजनून जो है लैला को ढूंढ रहा है, तो उसे पता नहीं चला कि वो आदमी है क्या पत्थर है। उसने लैला को ढूंढते तो आदमी की पीठ पर खड़ा हो गया, पीठ पर खड़ा हुआ तो हजरत नमाज तोड़ दिए। अरे कौन है कमबख्त, तो बोलता है मेरे पीठ पर खड़ा हुआ, दिखता नहीं तुझे। मजनून ने कहा अरे बेवकूफ, कैसे बुजुर्गी है तेरी। बोलते अरे मैं तो एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला मैं पत्थर पर खड़ा हूँ क्या इंसान की पीठ पर खड़ा हूँ। तू तो अल्लाह को ढूंढ रहा है, तुझे कैसे पता चल गया तेरे पीठ पर कोई खड़ा हुआ है। अल्लाह को ढूंढने आया था, तो चुपके से नमाज कर रहा जंगल में आके, कैसी तेरी नमाज है। उसी को कहा गया कि बरज़बा तस्बीह दर दिल गाओ खर, ये चुनी तस्बीह का इदारत असर। ऐसी तस्बीह असर अंदाज नहीं होती है। हम खुद अपने हाथों से अपने अमाल को बर्बाद कर, जो कर रहे हैं शैतान वो भी बर्बाद कर रहा है, लेके जाने देता है, हमारे सिर के ऊपर भी जाता नहीं है। जो भी हम अमल करते हैं, इबादत करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, शैतान लगा हुआ है हमारे पीछे, हमारे अमाल को हमारे सिर के ऊपर भी जाने देता नहीं। वो अल्लाह से कसम खाए, और कोई मामूली ताकत नहीं है उसके पास। दुनिया में सिर्फ दो ही ताकत है दोस्तों, एक अल्लाह की, एक शैतान की। एक अल्लाह की, एक शैतान की, तीसरी कोई ताकत नहीं है। फरमाया वखालिफिन नफ्स व शैतान व आसीमा, वखालिफिन नफ्स व शैतान आसीमा। शैतान तो बाहर रहता है, नफ्स अंदर रहता है, दोनों का चोली दमन का शेयरिंग है। यहाँ पर नफ्स है, वहाँ पर शैतान है। वो वहाँ से थोपता है, यहाँ से कबूल करता है और गुमराह करता है, गुमराह करता है, रास्ते से भटका देता है। कितना इबादत किया, सुबह उठ के लोगों को बोलता है अरे मैंने ये किया वो किया, तहज्जुद पढ़ा, फला पढ़ा, क्या पढ़ा तहज्जुद, क्या ख्वाब पढ़ा है, क्या हमारी ज़िंदगी है दोस्तों। हमारे पास क्या है अल्लाह को दिखाने के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह के बस सैकड़ों हज़ारों लाखों करोड़ों बेहिसाब मखलूक़ात है जो उसकी तस्बीह को पाकी कर रहे हैं। हमारी तस्बीह पाकी उसको ज़रूरत ही नहीं है, हमको ज़रूरत है उसकी, हमको ज़रूरत है उसकी। अल्लाह ताला ने हमारे सामने वो सारी चीज़ें मुहैया करके दिया है जिससे हम दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकें, हमको हिदायत के रास्ते मिल सकें, हमको सही रास्ते मिल सकें, हमको रहनुमाई मिल सके। तमाम चीज़ें हमारे सामने, कुरान हमारे सामने है मगर पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं, उसको लेते नहीं, उसकी तालीमात को लेते नहीं है। क्या क्या चीज़ें कुरान का अल्लाह ने बताया हर चीज़ के बारे में।
ہر چیز کے بارے میں رہنمائی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اللہ فرماتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اتنی بہترین آیت ہے وہ، ہماری غلطیوں کو سمجھنے کے لیے اور ہماری اعمال کو سمجھنے کے لیے تو بہترین آیت ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ مطالعہ کر لیجئے گھر میں جا کر تفصیل سے۔ اللہ فرماتا ہے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار۔ پانچویں وہ اموال اقترفتموها، وہ کاروباری تجارتی مال جس کو تم رولنگ میں لگاتے ہو، فائدے میں دیتے ہو، لیتے ہو، خریدتے ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ایسی تجارت جس کو ڈوبنے کا تم کو ڈر رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، عالیشان محلے اور گھر تمہارے۔ یہ 8 چیز ہوئے ٹوٹل۔ آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ 8 چیزیں ہیں۔ ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے مال، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے رشتہ دار، یہ 8 چیزیں ہیں، یہ 8 لوگ ہیں، یہ 8 چیزیں ہیں، یہ 8 فتنے ہیں، فتنے فتنے فتنے، یہ 8 فتنے ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ 8 چیزوں کی محبت سے زیادہ یہ 3 چیز کی محبت ہونی چاہیے۔ احب الیکم من اللہ، اللہ ورسولہ، اس کے رسول، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں مر مٹنے کی جذبے، یہ 3 چیزیں ان 8 چیزوں پر بھاری ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، کیا میں اللہ کے لیے مر مٹنے تیار ہوں؟ میں دین کے لیے مر مٹنے تیار ہوں؟ مجھے تو مہینے کے آخر میں پگار چاہیے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا؟ ہم تو اسی میں لگے رہتے ہیں۔ لڑکا پیدا ہوا کمانے کے لیے، لڑکی پیدا ہوا شادی کے لیے۔ جب لڑکی پیدا ہوئی شادی کی فکر لگی ہے، لڑکا پیدا ہوا پڑھائیں گے، سکھائیں گے، کمانے ڈالیں گے، اسی میں تو ہم لگے ہوئے ہیں دوستو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ان چیزوں کو سیکنڈری میں رکھو، نیچے رکھو۔ اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ، یہ اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے فتربصوا، انتظار کرو، اللہ آ رہا ہے اپنے حکام کے ساتھ، اللہ آئے گا اپنے فیصلے کے ساتھ، انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آئے، یعنی عذاب کے ساتھ آئے۔ انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو، مہلت دیا ہے، انتظار کرو۔ دوستو، ہمارے لیے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ ان 8 چیزوں کی محبت کو ان 3 چیزوں سے محبت سے کم رکھیں، زیادہ نہیں کریں۔ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے شوہر، یہ اور ہمارے مال، کاروبار، ہمارے گھردار، ان سب چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے مر مٹانا ہمیشہ تیار رہنا۔ اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے شریعت، اور اسی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ ہمارے سینوں کو ہم ان چیزوں سے پاک کریں، ان کی محبت سے پاک کریں، ان فتنوں کی شرور سے سینوں کو پاک کریں۔ اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی جذبہ جہاد کو ہم پیدا کریں اپنے اندر۔ دوستو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی ایک حبشی صحابی تھے، حبشی، کالے، غریب، ہمارے زمانے کے دولت مند، جس کے دل میں اللہ اس کے رسول بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر آگے پیچھے دیکھتا نہیں ہے۔ جوان تھا، شادی کی عمر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دیکھو رات کو کھانے کی روٹی نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول فرمایا کہیں لڑکی دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہوں، بولتا ہے بہت سردار کی لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، میں دیکھا ہوں، اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، ان لوگ سے بات کر کے ان کو بلا لے کے آؤ، نکاح کرا دیں گے۔
दौड़ा दौड़ा अल्लाह के रसूल का पैगाम लेकर लड़की के घर पहुँचे, बाप से मिला, कहा कि मैं अल्लाह के रसूल के हुक्म से आया, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बाप आग बबूला हो गया, आग बबूला हुआ। अरे तू फ़कीर कंगाल मेरी बेटी का हाथ मारने आया, हिम्मत कैसे हुई तुझे? उल्टा सीधा कहकर बेचारे को वापस लौटा दिया। वो जो उल्टा सीधा कह रहे थे तो बेटी अंदर से सुन रही थी। बेटी के दिल में तो ईमान था, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाई हुई थी। बेटी ने सुन लिया, बेटी ने सुनकर पीछे आया, अब्बा से, अब्बा किसको भगाए? बोला थोड़ा एक लड़का आया तेरे से शादी करना चाहता है, काला को लौटा के थे, गरीब, शाम को खाने का भी क्या भी नहीं उसके पास, तो सरदार की बेटी से शादी। अब्बा जल्दी उसको बुला लो, अब्बा जल्दी बुला लो, अल्लाह के रसूल का पैगाम लेकर आया हो, वापस मत करो, हम कहीं क्या नहीं रहेंगे, अल्लाह के रसूल ने भेजा है। अल्लाह के रसूल को सुना कर आया उसने, मुझे मंजूर है अब्बा, मैं शादी होती हूँ बोले। बाप ने जल्दी से बुलाया, फिर पीछे से बुलाया, चलो हम तैयार हैं शादी के लिए, अल्लाह के रसूल से कह दिया। अल्लाह के रसूल असर की नमाज के बाद बैठे थे मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर, चलो ऐलान कर दिया कि बुरादा की शादी होगी, निकाह होगा, सब लोग हाजिर हो जाओ। अब बोला जोड़ा खरीदो, कपड़ा खरीदो, बोला कुछ भी नहीं है। बोला वलीमा होने के लिए पूछा, बोला कुछ भी नहीं। एक सहाबी आए, 2000 दिरहम दिए, अल्लाह इस गरीब साहब ने अल्लाह के रसूल शादी करा दीजिए, मैं 2000 दिरहम देता हूँ। जल्दी खुशी खुशी बाजार में अल्लाह के रसूल पर खरीद के लाओ तो हम शादी निकाह करा देंगे। बाजार गया है, वहाँ पर ऐलान हुआ है जिहाद का, खुला जगह में मुसलमानों की शिकस्त हो रही है। दोस्तों वो हमारे जैसे इंसान थे, वो जवान था, शादी भी करना चाहता था, दिल में ख्वाहिशात भी थी, सब कुछ भी था, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी थी। ऐलान सुन रहा था, खुला जगह में मुसलमानों की शिकस्त हो रही है, 1000 रुपये में तलवार खरीदा, 1000 में ढाल खरीदा, सीधा निकल गया। अल्लाह के प्यारे बंदे ने वहां पर अपनी जान दे दी। अल्लाह के रसूल निकाह पढ़ाने के इंतजार में बैठे हुए हैं, बंदा गायब। बाद में पता चला कि बुरैदा तो मैदान जंग में शहीद हो गया। खबर मिली अल्लाह के रसूल को, बहुत अफसोस हुआ। शहीदों का एक कानून है, शहीद जहाँ पर वो जंग करके शहीद होते हैं वहीं पर उनको कब्रिस्तान बना दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बुरैदा की लाश को मदीना लेकर आओ, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। कितनी बड़ी कुर्बानी थी बेचारे ने, अपने दिल में सजा के बड़ा था, शादी करेगा, कुछ दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, प्यार मोहब्बत क्या चीज़ है, चकेगा, मगर अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में, दीन के मुकाबले में शादी को तरजीह नहीं दिया, चला गया, शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुरैदा को लेकर आओ, मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। सारे सहाबा मजमा जमा हुआ था, अल्लाह के रसूल हुजरे मुबारक में बैठे हुए थे। जब जनाजा तैयार है, ऐलान हुआ जनाजा तैयार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, 2 उंगलियों पे चल रहे हैं, पाँव जमीन पर नहीं रख रहे हैं, उंगलियों के ऊपर चल रहे हैं, अंगूठे के ऊपर चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा देख रहे हैं, ये क्या बात, अल्लाह के रसूल ऐसा चल रहे हैं, क्या तकलीफ है? चुपचाप बैठे, कोई आवाज नहीं है। जनाजा की नमाज पढ़ाए, कब्रिस्तान में कब्र में डाले, और बुरैदा की लाश को देखकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मुसलमान था वो भी, यही कलमा पढ़ा था जो हम रखते हैं ना, यही पढ़ा था वो भी। कितना 2-4 बार पढ़ा होगा, हम तो 1000 लाखों बार पढ़ा, नीचे नहीं उतर रहे दोस्तों, तो 1-2-4 बार पढ़े होंगे बेचारे। हाँ, यही कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अलग नहीं पढ़ा कुछ भी, यही पढ़ा था। कैसे उतार लिया था अपने अंदर। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, लोग दफन कर दिए। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा कि मैं देखा कि बुरैदा यहाँ पर शादी नहीं कर सका, कब्र में बूढ़े उसके लिए जल रहे हैं, उसको दूल्हा बनाने के लिए। मैं देखकर हंसी आई, मुझे मुस्कुराया, इसलिए मैंने यहाँ तो नहीं कर सका, वहाँ पर दुल्हन तैयार है बोलते। एक साहबी पीछे पीछे गए, अल्लाह के रसूल पाँव में क्या तकलीफ है आपको? क्या आप जमीन में पाँव नहीं रख रहे थे? अंगूठे के बल पर चलकर नमाज पढ़ाने के लिए आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज बुरैदा के नमाज जनाजा में इतने फरिश्ते नाजिल हुए कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को कदम रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इतने फरिश्ते नाजिल हुए। हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। दोस्तों, अल्लाह के रसूल, उसके दीन की जिहाद, ये जज्बा हमारे सीने में होना चाहिए। अगर हम मुसलमान बनना चाहते हैं, इस्लाम पर चलना चाहते हैं, दीन के खैर खा बनना चाहते हैं, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस दीन की तकाज़ों को, इस दीन की मोहब्बत को, अल्लाह, उसके रसूल, उसके दीन की मोहब्बत को हमारे सीने में जगह देना पड़ेगा। दोस्तों,
اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم کہیں کا بھی مسلمان نہیں رہیں گے اور کہیں کی بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہی ہمارے مشق کرایا جاتا ہے، یہی بار بار سنایا جاتا ہے، یہی بار بار پڑھایا جاتا ہے تاکہ سمجھو اور اندر کی آنکھ سے سمجھو، یہ ظاہری آنکھ میں اندر کی آنکھ سے سمجھو، سمجھ جاؤ، وقت آنکھ سے سمجھ جاؤ، ان چیزوں کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما